السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت قصہ پرستان کی ملکہ۔ کہتے ہیں ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اس وقت ہی فوت ہو گئے تھے جب موسیٰ ابھی بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنت سے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کچھ دیر سستا لوں، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ اس درخت پر موسیٰ نے شاخوں کو باندھ کر ایک جھولنا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اس جھولنے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ شاخوں اور پتوں سے بنے جھولنے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل کو گھپ اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک رتھ نمودار ہوا۔ اس رتھ کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کی کمر پر رنگین پر تھے۔ یہ پرستان کے اڑنے والے گھوڑے تھے۔ اس رتھ میں پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے کئی اور رتھ بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رتھ زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور فوراً بولی، جشن کا اہتمام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سما پیدا ہو گیا۔ طلسمی فانوس روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے گانے لگیں۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف آ گیا۔ موسیٰ لکڑہارا جو ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آوازیں سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملی، دانتوں تلے انگلی دابی، مگر سب کچھ ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئیں؟ موسیٰ کے دل میں آیا کہ یہی سوال پریوں سے پوچھے، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم ذات کو دیکھ لیں تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ اس لیے وہ چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن جاری رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزادہ نکولائی کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رتھ سے پری زاد شہزادے نکولائی کو نکال لائیں اور ایک درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا۔ کوڑا ہوا میں لہرایا اور شڑاک کی آواز کے ساتھ شہزادے نکولائی کی کمر پر پڑا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں کوڑا، ہر کوڑے پر شہزادے کے حلق سے بڑی دردناک چیخ نکلتی تھی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحمدل انسان تھا۔ شہزادے پر ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں تو مارے خوف اور حیرت کے چیخنے چلانے لگی، آدم زاد، آدم زاد۔ ملکہ پری نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، کون ہے تو اور یہاں کیسے آ گیا؟ موسیٰ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ اس درخت پر سو رہا تھا کہ گانے بجانے کی آوازیں سن کر آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش رہا، مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ اس بیچارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی ہے جو اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ تمہاری دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو ملکہ پری، موسیٰ لکڑہارے نے کہا۔ طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے، وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ آخر اس شہزادے سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔
हमारे देवताओं के मुताबिक परिस्तान का हाकिम वही बन सकता है जिसके पास शाही मोती हो। अब जो ही मैं मरूंगी तो सब्ज़ देव परिस्तान का बादशाह बन बैठेगा। वो जालिम और खूंखार देव परिस्तान का बादशाह इसलिए बनना चाहता है कि परिस्तान में पैदा होने वाली फसलें और फल उसके कब्जे में आ जाएं और वो उन्हें अपने साथी देवों में बांट दिया करे। इस तरह परियां भूखी प्यासी रहकर मर जाएंगी और परिस्तान जो ही परियों से खाली होगा देव उस पर कब्जा कर लेंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है शहजादे ने, मूसा सर हिलाकर बोला। इस गलती की सज़ा में इसे हर चांदनी रात को ज़मीन पर लाकर कोड़े मारे जाते हैं, मलका परी ने कहा। अच्छा, तो क्या परियां मिलकर सब्ज़ देव से मोती छीन नहीं सकती? नहीं, वो बेहद खूंखार और ताकतवर है, फिर उस तक पहुंचना जान जोखों का काम है। ज़रा मुझे बताओ उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ से सैकड़ों मील दूर शुमाल में एक खंडर है। उस खंडर में वाक़े कुएं में एक भुतनी रहती है। जो भी भुतनी के हत्थे चढ़ जाए वो उससे एक सवाल पूछती है। अगर उसे सही जवाब दे दिया जाए तो न सिर्फ वो जान बख्श देती है बल्कि आगे जाने का रास्ता भी बता देती है, और अगर जवाब गलत हो तो खून पीकर हड्डियां चबा जाती है, और आज तक कोई उसके सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, सब्ज़ देव में कोई नुक्स है? मेरा मतलब है, क्या वो बहुत ज़्यादा सोता है, खुशामद पसंद है या लालची है? वो बड़ा चालाक और होशियार है, मलका परी ने कहा। दिन में सोना तो एक तरफ रहा, रात को भी जागता रहता है। हाँ, एक नुक्स है उसमें। दिन की रोशनी में उसे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन रात को वो एक तिनका भी देख सकता है। मूसा लकड़हारा सोच में पड़ गया, फिर बोला, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसीबत ज़दा की मदद करो, किसी के काम आना भी इबादत है। मैं इस मजलूम शहजादे को कोड़ों की अजियत से बचाने के लिए सब्ज़ देव से मोती हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम? मलका परी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। वो तो तुम्हें चुटकी में मसल देगा। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा, मूसा लकड़हारे ने मजबूत लहजे में कहा। क्या तुम मुझे उन खंडरात तक पहुंचा सकती हो जहां भुतनी रहती है? हाँ, मेरा रथ तुम्हें वहां पहुंचा देगा, मगर एक बार फिर सोच लो कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो। मूसा जोर से हंसकर बोला, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। देव की क्या मजाल कि वो मेरी जान ले सके। तुम यहीं ठहरो, मैं अपने गांव से चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर आता हूँ। मूसा लकड़हारा अपने घर आया। उसने चमड़े की एक थैली में दही भरा, एक रस्सा लिया और एक भोंपू। तीनों चीज़ें लेकर वो वापस जंगल में आ गया और उड़ने वाले घोड़े के रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे। उनकी रफ्तार बेहद तेज थी। 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद घोड़े नीचे उतरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आ गए। मूसा छलांग मारकर नीचे आ गया। उसके सामने टूटे फूटे खंडरात दूर तक चले गए। चांद की जर्द रोशनी में ये खंडरात दूर से उन जिन्नों की मानिंद नजर आ रहे थे जो उकड़ू बैठे हों। मूसा खुदा का नाम लेकर खंडरात में दाखिल हो गया। खंडरात में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी, टूटी फूटी कब्रें। फिर यकायक खंडर एक आवाज़ से गूंज उठा, डरावनी और दहशतनाक आवाज़, वो जिसे सुनकर रगों में दौड़ता खून थम जाए। मूसा रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। फिर छन छन की आवाज़ के साथ कुएं से भयानक भूतनी निकलने लगी। उस भूतनी का कद दरख्तों से भी बड़ा था। लंबूतरा चेहरा, अंगारों ऐसी आंखें और बाहर को लटकी हुई सुर्ख जबान, सर पर कांटों की तरह खड़े बाल। काली हैबतनाक भूतनी ने दोनों हाथ सीने पर मारकर दिल दहला देने वाली चीख मारी। ऐसी भयानक और डरावनी चीख कि मूसा एक बार तो दहल गया। भूतनी ने कहा, आजा ए इंसान, मेरे पास आजा ताकि मैं तेरा खून पी सकूं। ये कहते हुए उस खबीस भूतनी की शक्ल बहुत खौफनाक हो गई थी। मूसा ने हौसला करके कहा, ए भूतनी, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूँ। अच्छा, तुम ऐसे कई आते थे और कोई वापस नहीं गया? भूतनी बोली, ले इधर देख। ये कहकर भूतनी ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर की एक दीवार रोशन हो गई और उस पर एक मंजर नजर आने लगा। मूसा ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाड़ खेत को खाने लगी और देखते ही देखते खेत खत्म हो गया। इसके साथ ही दीवार भी तारीक हो गई। भूतनी ने कहा, बता इसका मतलब क्या है? मूसा ने फौरन कहा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। ये खेत और बाड़ एक ऐसे शख्स का रूप है जो बददयानत है। उस शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर रकम रखवाई, मगर उसने अमानत में खयानत की और रकम खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। भूतनी के ढेले तेजी से घूमने लगे।
اس کی سرخ زبان मुंह में चली गई और कद छोटा हो गया। उसने मरी हुई आवाज में कहा, ए नौजवान, तूने सही जवाब दिया है, बोल अब तू क्या चाहता है। मूसा बोला, मैं सब्ज देव के किले में जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। भुतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भुतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान से शक हो गई। कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठने से हड्डियों के कड़कड़ाने की भयानक आवाज पैदा हुई। उस ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, मगर आंखें जिंदा इंसानों ऐसी थी, मुतहरक आंखें। उसने सर झुकाया, उसके होठों की हड्डियां हली और बोली, ए खंडरात की मलका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। भुतनी ने कहा, ओ मेरे गुलाम ढांचे, इस इंसान को सब्ज देव के किले में ले जा और फिर वापस ला। ढांचे ने अबू मूसा का हाथ थामा। ढांचे का पंजा बर्फ की तरह सर्द था। ढांचा मूसा को साथ लिए जमीन में गर्क हो गया। ढांचे के कहने पर मूसा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जमीन के अंदर देर तक सफर जारी रहा। फिर दोनों जमीन की सतह से उभर आए। मूसा ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम उश्शान किला नजर आया, जो काले पत्थरों का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज देव का किला, मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। मूसा अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले उसने इतर की शीशी अपने कपड़ों पर उंडेल ली थी, ताकि देव उसकी इंसानी बू ना सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ मूसा को सब्ज देव भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। मूसा ने भौंपू मुंह से लगाया और बोला, ओ सब्ज देव, अदब से खड़ा हो जा, हम कूहे काफ से देवों के बादशाह आए हैं। भौंपू से आवाज इस तरह निकली जैसे बादल गरज रहे हैं। सब्ज देव उठ खड़ा हुआ। उसे दिन के वक्त कुछ नजर तो आता नहीं था। वो बोला, क्या मुझसे बड़ा भी कोई देव है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे पर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी ना करो। मूसा भौंपू में बोला, हमारा नाम कड़वा करेला देव है और तुम हमारे सामने चिऊटी ऐसे हो। सब्ज देव घबरा गया। उसने सोचा, जब देव की आवाज इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बहुत बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि दिन को मैं नहीं देख सकता। ओ ना हजार देव, हमें झूठा कहता है? ले, हम तेरी तरफ अपनी मूछ का बाल फेंक रहे हैं, इससे हमारे कद का अंदाज़ा लगाना। ये कहकर मूसा ने रस्सा सब्ज देव की तरफ फेंका। देव ने मोटे रस्से को हाथ में टटोला तो दिल में बहुत घबराया कि इतना बड़ा देव कहाँ से आ टपका। वो आजिज़ी से बोला, हुजूर, मैं मानता हूँ आप ही सबसे बड़े देव हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। मूसा दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसकी तरकीब कामयाब हो गई। गरजकर बोला, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परिस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ वो मोती कहाँ है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़कर सारा खून पी जाऊंगा। सब्ज देव ने सोचा, जिस देव की मूछ का बाल इतना मोटा और बड़ा है, वो तो मेरी गर्दन यूं तोड़ डालेगा जैसे कोई खुश्क टहनी हो, इसलिए मोती उसके हवाले करके जान बचा लेना चाहिए। जान है तो जहान है। वो हाथ बांधकर बोला, सरकार नाराज मत हो, मैं तो आपका खादिम हूँ, अभी मोती पेश करता हूँ। सब्ज देव ने अपने बालों में से मोती निकालकर मूसा को दे दिया। मूसा ने 2-3 कहे लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो खंडरात में पहुंचा। खंडरात से बाहर रथ में परियों की मलका उसका इंतजार कर रही थी। मूसा ने मोती उसके हवाले किया तो वो खुशी से नाचने लगी। शहजादे निकोलाई ने मूसा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और सब परियां उसे घर तक छोड़ने आई। उसके बाद मूसा कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया। उसे अब ज़रूरत ही क्या थी। परी मलका ने उसे इतने जवारात दिए थे कि वो शहर का सबसे बड़ा अमीर बन गया था।